علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسول الکریم. پہلے تو میں اس بات کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ چونکہ کنڑ میری زبان نہیں ہے، اب تک جو کچھ کہا گیا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں اندازہ ضرور ہوتا رہا کہ کیا کچھ کہا جا رہا ہوگا، لیکن یہ میری بدقسمتی کہ میں محروم رہا. جو کچھ گراں قدر خیالات کا اظہار جناب ضیاء اللہ گلبرگہ صاحب نے کیا اور محمد کنی صاحب نے کیا، یقیناً بہت ہی قابل توجہ باتیں انہوں نے کہی ہیں، اس کا اندازہ مجھے اتنا ہو گیا. لیکن کاش میں تھوڑا کنڑ جانتا یا آپ لوگوں نے میرا خیال کرتے ہوئے اردو میں یہ گفتگو رکھی ہوتی تو شاید میرے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہوتا. بہرحال آپ نے ویڈیو میرا سنا ہوگا، تو موضوع میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ آج تھیوریٹیکل فزکس میں ایک پرنسپل ہوتا ہے اینتھروپک پرنسپل. اس میں یہ بحث کی گئی کہ آخر انسان کو پیدا کرنے کا یا پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا، اور اس میں نے تفصیل سے اس ویڈیو میں بیان کیا. یہاں بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ویک اینتھروپک پرنسپل جس کو آج کل مانا جاتا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان اس لیے پیدا ہوا کہ اگر انسان پیدا نہ ہوا ہوتا تو اس کائنات کی خوبصورتی کو پہچاننے والا اور بیان کرنے والا کوئی دوسرا نہ ہوا ہوتا. قرآن پاک نے اینتھروپک پرنسپل کا ٹرو ورژن پیش کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس میں یہ واضح کر دیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کسی اور کام کے لیے نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اب یہاں پر دیکھیے فرق ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ صرف خوبصورتی بیان کریں، ڈسکرائب کریں، اس کو سمجھیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کی ذمہ داری کائنات کی خوبصورتی کو دیکھنے اور سمجھنے، اسے بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پتہ لگائے کہ آخر اس خوبصورتی، یہ جو بیوٹیفل ہارمونی پورے یونیورس کے اندر قائم ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ میں اربوں سال سے یہ نظام چل رہا ہے، آخر اس نظام کو چلانے والی ہستی کون ہے، آخر اس خوبصورتی کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور اس خوبصورت نظام کا خالق کو پہچانے، اور اس کے بعد میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آخر وہ خالق ہم سے تقاضا کیا رکھتا ہے، کیوں اس نے انسان کو یہ طاقت دی. باقی کائنات میں کسی کو اس نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ایک ارادتاً، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ ارادتاً کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے. لیکن انسانوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت پیدا کی، اللہ نے یہ ان کو حق دیا کہ آپ چاہیں تو نعوذ باللہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے صرف انکار ہی نہیں کرتے، اللہ کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں. تو انسان کو اجازت ہوئی، اس لیے انسان کو اشرف المخلوق بھی اسی لیے کہا گیا کہ چونکہ اس کو اجازت کے باوجود اگر وہ ارادتاً، اگر چاہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقام باقی تمام جتنی کائنات کی مخلوقات ہیں ان سب سے اونچا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو یہ حق تھا کہ وہ نہ مانے اللہ کو، لیکن اس کے باوجود اس نے سوچ سمجھ کر اللہ کی اطاعت قبول کی اور اللہ کی مرضی کے مطابق زمین پہ زندگی گزارنے کی کوشش کی. یہاں پر ایک بات اور غور کرنے لائق ہے کہ دیکھیے قرآن میں آیا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، الگ الگ لفظ اللہ کی اطاعت کے لیے آئے ہیں. سجدہ آیا، تسبیح آیا، حمد آیا، تقدیس آیا، لیکن باقی تمام الفاظ کے علاوہ جو ابدیت کا لفظ ہے وہ بالخصوص صرف انسانوں اور جنوں کے لیے آیا. کائنات میں باقی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کہا گیا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں. لیکن لفظ ابدیت وہ صرف انسان کے لیے اور جنوں کے لیے مخصوص ہے، چونکہ باقی کی اطاعت میں اور انسان کی اطاعت میں یہی فرق ہے کہ انسان ارادتاً چاہ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور یہ ابدیت کا مقام اس لیے باقی اطاعت کے تمام مقامات سے زیادہ بلند ہے. اس کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی اطاعت کرے، نہ کرے، اس کے باوجود وہ سوچ سمجھ کر اللہ پر ایمان کا جہاں بات آتی ہے تو ایمان میں مختلف اجزاء ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مان لیا اللہ کو، بلکہ یہ دل میں مکمل اطمینان ہو جانا، اور اس کے بعد میں پورا کمٹمنٹ کہ نہیں اب میں جو کچھ کروں گا صرف اللہ کی دائرے میں، اللہ نے جو دائرے دیے ہیں ان دائروں کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کروں گا.
تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک بالکل ایک ملک السماوات والارض کہ ایک اسٹیٹ، جیسے ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، یہ کائنات بھی ایک حکومت ہے جس کا الٹیمیٹ مالک اللہ ہے. اور اس کائنات کی حکومت کو چلانے کے لیے اللہ نے مختلف پورا نظام پیدا کیا ہے. اس نے امور پیدا کیے. امور اشارہ کرتے ہیں کہ وہ لاز آف نیچر جن سے کائنات چل رہی ہے، جس میں تمام فورسز ہیں، جن میں 4 فنڈامنٹل فورسز مانی جاتی ہیں. گریویٹیشنل فورس ہے، اور لائٹ ہے، اور 2 طرح کی فورسز نیوکلیئر فورسز ہوتی ہیں، جس کو ایک کو ویک نیوکلیئر فورس کہا جاتا ہے، ایک کو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہا جاتا ہے. تو اللہ نے امور، لاز آف نیچر پیدا کیے جو پوری طریقے سے اللہ نے قوانین کے مطابق پوری کائنات چل رہی ہے. تو اللہ نے اس کے علاوہ اپنی خاص مخلوق فرشتوں کے طور پر پیدا کیے. اب فرشتے کے لیے لفظ ملک آیا ہے. اب ملک اور ملک یہ سب ایک ہی روٹ کا حصہ ہیں. یعنی وہ جو ملائک ہیں وہ ایک قسم سے ایک طریقے سے ایگزیکٹیوز ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو اس پوری کائنات میں کو چلانے کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے. تو یہ پورا کا پورا کائنات ایک بالکل ایک اسٹیٹ، ایک ویل اسٹیبلشڈ، ویل ایڈمنسٹرڈ اسٹیٹ کی طرح ورک کر رہا ہے. اور پوری کائنات کے اندر خوبصورت نظام اسی لیے قائم ہے کہ چونکہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ اللہ کے قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتا. اس کو جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہی، چاہے وہ الیکٹرونز ہوں، چاہے پروٹونز ہوں، چاہے نیوکلیس ہو، چاہے مختلف اجزاء الگ ہوں، پلینٹس ہوں، گیلیکسی. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن میں اللہ نے کائنات کے تقریباً تمام کمپوننٹس بیان کرتی ہیں. 7 آسمانوں کا ذکر کیا. ابھی میرا ایک پورا پیپر پبلش ہوا ہے ایک امریکن جرنل کے اندر، جس میں نے ایسٹرو فزکس میں 7 آسمان کس طریقے سے قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو میں نے بتایا ہے کہ کون کون سے وہ 7 آسمان ہیں. قرآن سب کے ہر آسمان کی وضاحت کر رہا ہے. کہیں والسماء والطارق کہتا ہے، کہیں والسماء ذات البروج کہتا ہے، کہیں والسماء ذات الرجع کہتا ہے. تو اس طریقے سے الگ الگ آسمانوں کی طرف اشارے موجود ہیں قرآن کے اندر. تو قرآن نے جتنے بھی کائنات کے کمپوننٹس ہیں، میجر کمپوننٹس، چاہے وہ مختلف قسم کے آسمان ہوں، پھر شہاب الثاقب ہو، نجم الثاقب ہو، کواکب ہو، نجوم ہو، تو سب کی طرف اشارہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے. تو قرآن ایک بہت کائنات ایک بہت ویل اسٹیبلشڈ آرگنائز سسٹم ہے جس کا مالک حقیقی اللہ ہے، اور وہ اس کائنات کو چلاتا ہے. اس نے زمین کو انسانوں کے سپرد کر دیا کہ زمین کو اس نے کہا کہ زمین آپ کے اختیار میں دے دی گئی ہے، لیکن آپ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑا گیا. اللہ نے ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، اور رسولوں کے ذریعے ہدایت کی، سمجھایا کہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے بالعموم اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فسادات ہیں، ہر طرف خونریزی ہے، ہر طرف قتل و غارت گری ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ اللہ کے قوانین کی اطاعت بطور سسٹم نہیں ہو رہی ہے. انفرادی طور پر کچھ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، لیکن سسٹم جو ہے وہ سسٹم کہیں بھی، یہاں تک کہ مسلم کنٹریز میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سسٹم پوری طریقے سے اسلامک ہے. اس کے بعد میں، چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں تقریباً 10 منٹ میں اپنی بات شروع رکھوں، اس کے بعد آپ لوگ جو مجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं सैयद मुराद हूँ, नाम मेरा मुजाहिद रह गया है जी, बेंगलुरु से. मोहतरम की तकरीर, कल की तकरीर, आज की तकरीर हमने समाअत फरमाई. उस तकरीर के बारे में गोया कि मैं एक शेर में कहूँगा कि देखना तकरीर की लज्जत के जो कुछ उसने कहा, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है जी. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तकरीर तौहीद रिसालत आखिरत के ताल्लुक से बहुत दलाइल के साथ थी. और फिर जो हम दावत में बहुत सारे पहलू में माहौल के असर से माजूरत खाना अंदाज इख्तियार करते हैं, गोया कि हमको ये तकरीर से एक इक़दामी अंदाज, दिलसोजी और तड़प हक के साथ लैस होकर
बड़े अच्छे अंदाज से दावत का काम करने के ताल्लुक से हमें रहनुमाई मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद रिसालत की आखिरत के ताल्लुक से बहुत सारे दलाइल मिले हैं आपसे तकरीर में। हम आमतौर पर दावत पेश करने जाएं तो एक मसला हमें दरपेश होता है कि वो ये कि वहदत अदियान का मसला। वहदत अदियान का मसला है कि जहाँ भी जाते हैं किसी महफिल में सियासी लोग, दूसरे लोग और दूसरे स्वामी जी वगैरह, वो कहते हैं कि जो भी मजहब हैं हक हैं, जो भी सच्चाई की तरफ ही रहनुमाई करते हैं, किसी एक सच्चाई को इख्तियार करने से हम सिरात मुस्तकीम पा जाएंगे, नजात पा जाएंगे, वो खालिक की मर्जी को पाकर नजात पा जाएंगे। ये इसका जवाब हम साइंटिफिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में कैसा दें, हमको रहनुमाई कीजिए मोहतरम डॉक्टर जावेद जमील साहब, जज़ाकल्लाहु खैरन। देखिए, जैसे पहले आपने कहा कि माज़रत खाना अंदाज, हमें इस बात की जरूरत है कि हम बिल्कुल भी अपोलोजेटिक ना हो और डिफेंसिव ना हो। हमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल एग्रेशन, जिसको मैं कहता हूँ, हमें कोई हथियारों का एग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत एग्रेशन के साथ में चीजों का जवाब देना है। हमने उनको ये समझाना है कि देखिए, पहली बात, आप इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए कि इस्लाम कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मजहब है। पहला जो इंसान जमीन पर आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उसको भी नबी बनाया, और उसके बाद में एक बड़ी तादाद में बेशतर मज़ाहिब जितने हैं वो किसी ना किसी पहले रसूल के लाए हुए पैगाम का एक डिस्टोर्टेड इमेज वो है आजकल, जिसको उन्होंने काफी हद तक उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। वो बिगाड़ पैदा होता रहा, इसीलिए एक के बाद एक नए रसूलों की और पैगंबरों की जरूरत पड़ी। अगर बिगाड़ ना आता तो नए रसूल के आने की जरूरत नहीं थी। और चूंकि जब अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखते हैं कि जब नया अमेंडमेंट आ जाता है तो फिर नई चीज को मानना जरूरी हो जाता है। फिर कोई ये कहे कि नहीं साहब, मैं तो 1944 में जो कानून था उसके ऊपर अमल करूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। कुरान में वजाहत है कि पहले बड़ी तादाद में 1 लाख से ज्यादा हादी पैगंबर दुनिया के अंदर आए, मुख्तलिफ जगहों पर आए, उन्होंने सच्ची बातें, बिल्कुल यही दीन इस्लाम दुनिया को पहुंचाया। लेकिन वक्त की जरूरत के एतबार से उसको इवॉल्व होता रहा, डेवलप होता रहा। चूंकि बेसिक मैसेज कि अल्लाह के अलावा कोई काबिल इबादत नहीं है वो हमेशा सेम रहा, लेकिन चूंकि वक्त के हिसाब से दुनिया डेवलप हो रही थी तो जो कवानीन है उसमें तब्दीली आती रही। तो अब उनको ये बताने की जरूरत है कि हम सब मजाहिब को एक होना है, क्योंकि आज चैलेंज एक मजहब का दूसरे मजहब से नहीं है। ये बात बहुत गौर से समझने की है कि अफसोस की बात यह है कि हमारे जितने भी ज्यादातर स्कॉलर्स हैं वो इस्लाम को कभी क्रिश्चियनिटी के मुकाबले में, कभी जुडाइज्म के मुकाबले में, कभी हिंदुइज्म के मुकाबले में पेश करते रहते हैं। आज इस्लाम को चैलेंज किसी दूसरे मजहब से है ही नहीं। कोई दूसरा मजहब आज इस हैसियत में नहीं है कि इस्लाम को चैलेंज कर सके। इस्लाम को चैलेंज है तो वो मॉडर्न फिलोसफीज जिन्होंने आज दुनिया पर कब्जा कर रखा है, जो इंतहाई खतरनाक हैं, उनको है। तो हमें तमाम अदियान के लोगों को ये कहने की जरूरत है कि भाई आप सब मिलकर, हम सब मिलकर काम करें। और अगर आप इस्लाम के हकीकी पैगाम, जो हकीकी उसका जो जुज है कि इस्लाम एक सिस्टम है और उस नए सिस्टम को फॉलो करके ही आप दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं, अगर उस पर आ जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लाम को बाकायदा एक मजहब के तौर पर कबूल नहीं भी करना चाहते तो हमको रिलीजियस मॉरलिटी की बुनियाद पर एक होना है। क्योंकि जो बाकी जो कायनात की जो सो कॉल्ड अथीस्टिक फोर्सेस हैं, जो मजहबों पर यकीन ही नहीं रखती, उनसे जितना खतरा है वो मज़ाहिब को आपस में एक दूसरे से उतना खतरा नहीं है। इसलिए हम सबको एक होकर उनका मुकाबला करना है। और तो इस बहाने वो आपके करीब आएंगे और उसके बाद अपना हम आहिस्ता आहिस्ता उनको लिटरेचर के जरिए जब आर्गुमेंट्स होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उनकी समझ में ये भी आएगा, ये आना शुरू हो जाएगा कि भाई अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो हम पिछले किसी अपने मजहब को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उस मजहब की जो ओरिजिनल शक्ल थी शुरू में, उसी का फाइनल वर्जन हम आज जो है कबूल कर रहे हैं। वो पुराना वर्जन था, अब नया वर्जन है। अल्लाह को अगर हम मानते हैं तो अल्लाह के हर कानून को मानना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने जो कानून 15,000 साल पहले 15,000 या 5,000 साल पहले दिया है उसको हम माने, और जो लेटेस्ट कानून 500-1500 साल पहले दिया उसको हम इनकार कर दें।
یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. لیکن اس سب کے لیے ہمیں بہت ایک مہذب طریقے سے انٹلیکچولی اگریسو ہوں, لیکن ہم ویسے اگریشن نہ کریں, ہم کسی مذہب کی توہین نہ کریں, ہم کسی مذہبی رہنما کے خلاف کوئی غلط لفظ استعمال نہ کریں, بلکہ یہ کہیں کہ اگر رام چندر جی تھے تو رام چندر جی اپنے زمانے کے ایک بہترین رہنما تھے. اور میری جو ذاتی تحقیق ہے کہ جو والمیکی رامائن میں جو رامائن کی پوری سٹوری ہے اور حضرت ابراہیم کی جو سٹوری بائبل کے اندر موجود ہے وہ بالکل یکساں ہے, ان میں تمام اجزاء تقریباً کامن ہے. تو لیکن ہمیں ان کو آہستہ آہستہ اپنے قریب لانے کی کوشش کرنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ چیلنج ہمارے لیے ہندو دھرم نہیں ہے, ہندوتوادی فورسز ہو سکتی ہیں, ہمارے لیے چیلنج کرسچینٹی نہیں ہے, ہمارے لیے چیلنج وہ طاقتیں ہیں جو ویسٹرنزم کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں, یا جو لیفٹزم اور کمیونزم کی جو طاقتیں ہیں وہ بڑا چیلنج ہے. تو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور باقی مذاہب کو جہاں تک ممکن ہو ہمیں انہیں ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ಹನೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಡಿಕೇರಿ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್ ಅದನ್ನು ಉರ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾವೇದ್ ಜಮೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹನೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं रफीक अहमद बीदर से. मेरा सवाल इकामत दीन के क़याम के ताल्लुक से है. हमारा मारूफ अप्रोच इसमें ये होता है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का तारुफ किया जाए, उसका मुकाम मर्तबा बताया जाए, फिर ये जिंदगी के बाद और एक जिंदगी के मामले उसके सामने खोल खोल रखे जाएं, अल्लाह की किताब अल्लाह के रसूल का तारुफ किया जाए. फिर जब उसका जहन बनेगा तो फिर दीन के क़याम के ताल्लुक से हम उसके सामने बात रखें. मेरा जो सवाल है, एक तो कि दूसरा अप्रोच ये कि जैसे आपने अभी बारहा ये बात कही कि अल्लाह का एक सिस्टम है, अल्लाह का एक मीज़ान है जो ज़मीन व आसमान में अल्लाह ने कायम रखा है. इसमें अगर अल्लाह के जो सिस्टम है, अगर उसको हम थोड़े थोड़े ही उसको प्रैक्टिस में लाकर दुनिया के सामने रखते हैं, मसलन बिला सूदी कोई इदारा आप किसी शहर में कायम करते हैं, लोग उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि देखिए ये जो आप चुंगल में फंसे थे सूद के, अल्लाह के कानून ने आपको उससे राहत दी. तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिकली ये कोशिश करेंगे तो भी दीन के क़याम यानी वो जो सिस्टम जिससे एनवायरनमेंट से लेकर ज़मीन व आसमान तक जो अफरा तफरी फैली है वो अल्लाह के अहकाम को उसकी तामील ना होने की वजह से है. एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है. कार्ल मार्क्स ने जब दुनिया के सामने एक थ्योरी पेश की और बताया कि इससे इंसानियत का बड़ा भला होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, अमन ही अमन रहेगा. जब वो ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ರಫೀಕ್ ಸಾಬ್. ಆಯ್ತು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾಷಣ ಬೇಡ, ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಬೇಡ. ಅದೇ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हाँ, तो देखिए जब कार्ल मार्क्स ने पेश किया तो जमीन पर वो निजाम कहीं नहीं था. जब वो कन्विंस किया तो लोगों ने कबूल किया. तो हमारी ये जो इकामत दीन वाली बात है, अगर हम उसको प्रैक्टिस में लाएं, फिर दुनिया के सामने उसका एक नमूना पेश करें तो इसमें बड़ी आसानी होगी. इसकी वजाहत, ये मेरा सवाल है. देखिए, मैं बारहा इस बात को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आज दुनिया में जो पूरा सिस्टम है उसमें जो फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जिसे मैं कहता हूँ इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म की थ्योरी हावी हो गई है. हर चीज में, पूरी दुनिया में क्या चीज हलाल है और हराम है, अब इसका फैसला किसी ना तो मेडिकल की बुनियाद पर होता है, ना कानूनी उसकी जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं उसके बुनियाद पर होता है. इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्सेस करती हैं. और उन्होंने नतीजा ये निकलता है कि हर चीज को वो कमर्शलाइज करते हैं. वो इंसान की जरूरतों को भी कमर्शलाइज करते हैं और इंसान की वीकनेसेस को भी कमर्शलाइज करते हैं. और वो डेंजरस इकोनॉमिक्स जिसको मैं कहता हूं, वो इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो गई है वर्ल्ड में, और उसकी वजह से इतनी खबासतें और इतनी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में पैदा हो गई हैं कि मुझे अफसोस होता है कि मैं बजाते खुद तकरीबन
20 साल से इस तरफ लोगों का इशारा कर रहा हूं, लेकिन अभी तक आलम इस्लाम उस तरफ जागा नहीं है कि अगर हम उसको बुनियाद बना लें कि देखिए साहब, आपने जो फ्रीडम ऑफ चॉइस का कॉन्सेप्ट दिया कि हर चीज एक आपको आजादी है, सब ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का कॉन्सेप्ट ये मार्केट फोर्सेस ने दिया है। वो चाहते हैं कि आपकी तमाम कमजोरियों की भी तिजारत करें, इसलिए उन्होंने आपकी कमजोरियों की भी इजाजत दे दी। मुझसे मैं अभी तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है कि एक बेंगलोर के अंदर मुझको एक सेमिनार के अंदर बुलाया गया, जो व्हाइट फील्ड चर्च के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चर्चेस जेनेवा ने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें बाहर के बहुत लोग आए हुए थे, बहुत चंद लोग थे जो हिंदुस्तान में थे, उनमें मैं भी एक मद्दू था। तो मेरी गुफ्तगू के बाद में एक जेनेवा की लड़की खड़ी हुई और उसने ये सवाल किया मुझसे कि साहब देखिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन मसला ये है कि हम जर्मनी के अंदर देखते हैं कि एक क्लब के अंदर हम रात को, एक होटल के अंदर रात को जाते हैं, अपना खाना खा रहे होते हैं कि उसी बीच में कोई खातून स्टेज पर आती है और वो एक के बाद एक अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और वो डांस करती है और उसकी वजह से वो होटल की बिक्री जबरदस्त बढ़ती है। तो अब हमें भी बुरा लगता है बहैसियत क्रिश्चियन, लेकिन वो उसका हक है, वो उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम उसको कैसे मना करें? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमें ये बात समझ लेने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस असल में है क्या। ये तो मेरे समझ में आता है कि अगर हम सुबह को खाने की टेबल पर घर के लोग इकट्ठे होते हैं, नाश्ते की टेबल पर, नाश्ते में दूध है, चाय है, चलिए कॉफी भी है, मुख्तलिफ किस्म के जूस है, ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, ये तो मेरे समझ में आता है। लेकिन अगर उसी के बीच में थोड़ी सी अफीम भी रखी गई हो, थोड़ा सा वाइन भी रख दिया जाए, थोड़ा बियर भी रख दिया जाए, तो क्या आप इसे फ्रीडम ऑफ चॉइस कहेंगे? फ्रीडम ऑफ चॉइस मस्ट मीन फ्रीडम ऑफ गुड चॉइसेस. Freedom of bad choices cannot be given to the world because general people are always weak. वो they tend to fall to victim to the वो शिकार हो जाते हैं बहुत जल्दी बुराइयों का। इसलिए ये जिम्मेदारी सिस्टम की है कि वो उनको उन बुराइयों से का शिकार मत होने दें, वो चीजें उनको अवेलेबल ना हो जो चीजें बुराइयां पैदा करती हैं। अब शराब की वजह से हर साल तकरीबन 35 लाख लोग तो सिर्फ शराब की बीमारियों की वजह से मरते हैं, बाकी एक बड़ी तादाद में लोग एक्सीडेंट में और मर्डर्स और सुसाइड उसकी वजह से मरते हैं। जो जिनसी वहशत तारी है दुनिया में, उसकी वजह से 3.5 करोड़ लोग HIV एड्स से पिछले 25 साल के अंदर मर चुके हैं और हर साल कई लाख लोग उसका लगातार शिकार हो रहे हैं। अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर 30,000 लोग हर साल सिर्फ HIV एड्स से मरते हैं। तो हमें दुनिया में इस डेंजरस इकोनॉमिक्स या इस्लामिक इकोनॉमिक्स के नाम पर सिर्फ एक बात लोगों की समझ में आई कि गैर सूदी निजाम, लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक्स उससे कहीं बढ़कर है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा पहलू ये होना चाहिए था कि डेंजरस इकोनॉमिक्स के खिलाफ पूरे वर्ल्ड के अंदर कैंपेन चलना चाहिए। उस डेंजरस इकोनॉमिक्स में ये तमाम चीजें हैं जिनकी तिजारत हो रही है बड़े पैमाने पर, अल्कोहल की, ड्रग्स की, गैम्बलिंग की और सेक्स की, इन तिजारतों के खिलाफ मुसलमानों को भरपूर वर्ल्ड लेवल पर तहरीक चलानी चाहिए, लेकिन अफसोस नहीं हुआ। हिंदुस्तान की मिसाल देखिए कि यहाँ पिछले 25-30 साल में 40 साल के अंदर गैम्बलिंग के खिलाफ भी हरियाणा के अंदर तहरीक चली, लॉटरी पर बैन हुआ, बॉम्बे में नंगेपन के खिलाफ और होटलिंग के खिलाफ तहरीक चली, शिवसेना ने चलाई, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने शराब की बंदी की। क्यों? ये काम तो सबसे पहले हमें करना चाहिए था। हमारे यहाँ खास तौर पर इन चीजों को हराम करार दिया गया, लेकिन हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड कैंपेन इन बुराइयों के खिलाफ नहीं चलाया। अगर हम इन बुराइयों के खिलाफ, चूंकि अब हमारे पास आज से 100 साल पहले हमारे लिए इतना आसान नहीं था, आज बहुत आसान है, क्योंकि सारे साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद है। हम उनकी मदद से पूरी दुनिया के सामने एक पूरा भरपूर कैंपेन चला सकते हैं। और जब ये कैंपेन चलेगा तो लोग ये रियलाइज करेंगे कि देखिए, इस्लाम ने 1500 साल पहले इन चीजों को कितनी सख्ती के साथ मना किया और इस्लाम का पूरा जो सिस्टम है, मैंने बाकायदा अपनी किताब में इस्लाम हेल्थ पैराडाइम पेश किया है कि इस्लाम आज दुनिया में हेल्थ जो है सेकेंडरी हो गया है, इकोनॉमिक्स टॉप पर है। उसमें फैसले इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर होते हैं कि क्या चीज लीगल और क्या इलीगल होगी, लेकिन इस्लाम के अंदर सारे फैसले जितने दुनियावी मामलात हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक है सेहत से है। जो चीजें सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है उनको इस्लाम ने हराम करार दे दिया। जो चीजें बहुत ज्यादा मुज़िर ना सही,
कुछ थोड़ी मुज़िर हैं उनको मकरूह कहा, और जिन चीज़ों से सेहत को फ़ायदा है उन चीज़ों को इस्लाम में पसंदीदा करार दिया गया। इस्लाम में ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल के लिए कुरान कह रहा है कि 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग करो, उसके ज़बरदस्त हिकमत उसकी मेडिकल लेवल पर सामने आई है। सर्कमसीजन से ज़बरदस्त उसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस सामने आई है। पोर्क से होने वाली बीमारियां खुलेआम सामने आ रही हैं, एल्कोहल से रिलेटेड बीमारियां सामने आ रही हैं, गैम्बलिंग भी सुसाइड्स का एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। तो हम इस्लाम को एज ए मॉडर्न, एक ट्रू सिस्टम, रियल परफेक्ट सिस्टम फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ सोसाइटी, कि इस्लाम अगर आएगा तो इंसान की लाइफ और हेल्दीनेस ऑफ लाइफ मजबूत होगी और दुनिया से क्राइम्स का खात्मा होगा। तो हमको एक लार्जर, हम जो बहुत छोटी छोटी कोशिशें करते हैं उनसे काम नहीं चलने वाला है। अब हमें बड़ी होलिस्टिक रेजीम पेश करना है, परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। हम काम को बांट सकते हैं कि भाई एक ग्रुप है वो इस चीज के खिलाफ लड़ेगा, दूसरा ग्रुप दूसरी, लेकिन ओवरऑल हमारी स्ट्रेटेजी में हर कंपोनेंट शामिल होना चाहिए। हमें एक मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी की जरूरत है, और उस जरूरत को एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करना है। वो काम को तकसीम कर दे कि भाई आप इस लेवल पर काम कीजिए, आप इस मैदान में काम कीजिए, आप इस मैदान में काम कीजिए, लेकिन हर फील्ड में काम की जरूरत है। और डेंजरस, मैं आपसे, आप चूंकि जमात इस्लामी से ताल्लुक है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि डेंजरस इकोनॉमिक्स के खिलाफ आप पूरा पहले हिंदुस्तान के अंदर पूरी तहरीक चलाइए, हर शहर के अंदर इसको इसमें एक सेमिनार करिए, और उसके बाद हो सके तो बाकी दुनिया के अंदर चलिए। इंशाअल्लाह लोग इस्लाम के करीब आएंगे, लोगों को समझ में आएगा कि इस्लाम का हकीकी मकसद दुनिया में सही मानों में सलामती कायम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सईद इस्माइल साहब, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸईद ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಉದ್ದ ಬೇಡ ಭಯ, ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. क्या फरमा रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए क्या फरमा है। नहीं, वो क्वेश्चन शॉर्ट में रहे तो अच्छा है, बल्कि मोहम्मद कुंजी साहब बोले। सईद इस्माइल साहब. ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ವಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ डॉक्टर जावेद जमील साहब. सईद इस्माइल साहब ने कन्नड़ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको ट्रांसलेशन हमारा जियाउल्ला साहब कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह ಕೇಳಿ सईद इस्माइल साहब पूछिए. ಇಲ್ಲಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಒಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು, ಇದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಧರ್ಮ, ದೇವರಂತ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಗೊಳಿಸಿದೆಯೋ, ಶರಾಬು, ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರದಂತೇಳಿ, ಅಂತ ತಿಂದವರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುರಾನ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು? ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾವಿಲ್ ಜಮೀಲ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ. सईद इस्माइल और सईद इस्माइल साहब मंगलूर से एक सवाल ये के हैं कि लोग, खासकर इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों के जहनों में बात है कि कुदरती तौर पर ये कायनात चल रही है, ये जो एक इसके लिए कोई खुदा वगैरह का कोई तस्वीर नहीं है, कोई मामला नहीं है। सिर्फ लोग तो खुदा का तस्वीर इसलिए देते हैं कि लोगों को डराया जाए, धमका जाए, ताकि वो सही रास्ते पर चल सके। एक तस्वीर ये इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों में पाया जाता है। और एक चीज जो ये बात उन्होंने पूछा है कि अगर ये दुनिया तरक्की कर रही है तो तरक्की, इस्लाम जो चीजों के ऊपर पाबंदी लगाए, जैसे खंजीर वगैरह का खाने पर वगैरह की पाबंदी, अगर वो आखिर वैसी रहती तो आज हम देखते हैं कि खंजीर खाने वाले, शराब पीने वाले मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पर कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा ना होना। ये सवाल का देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो सो कॉल्ड एडवांस्ड सोसाइटीज हैं वर्ल्ड की, यूरोप और अमेरिका, कि वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं।
वो मजे इस तरह तो मजे कर रहे हैं कि वो रोज गाड़ियों में घूमते हैं, होटलों में जाते हैं, डांस करते हैं, शराब में पीते हैं, अपना मस्त होकर, बस इतना मजा तो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर दुनिया के अंदर मेरी मुस्लिम मोस्ट सिविलाइज येट नॉट एनफ में ये सवाल बड़ी तफसील के अंदर से, मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स वो किताब पढ़े, क्योंकि उसमें तमाम स्टेटिस्टिक्स दी हुई हैं कि तमाम तर कमजोरियों के बावजूद आज भी मुसलमान दुनिया की महज़्ज़ब तरीन कौम है, और तमाम तर सो कॉल्ड एडवांसमेंट के बावजूद जो सबसे ज्यादा बदतरीन और बारबरी कौम है वो अमेरिका और यूरोप की कौमें हैं। आप वहां पर अगर आप हकायक का पता चलाएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर कहीं किसी सोसाइटी के अंदर है तो वो अमेरिका और साउथ अफ्रीका और जहां जहां वेस्टर्न सिस्टम है, यूरोप, सबसे ज्यादा मर्डर्स वहां होते हैं, मर्डर्स असॉल्ट्स वहां होते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें मर्डर्स असॉल्ट्स का अमेरिका में और सऊदी अरब में तो आपको मालूम होगा कि 1:80 का डिफरेंस है। अगर उतनी ही पॉपुलेशन पर वहां 80 के ऊपर कत्ल की कोशिश होती है तो सऊदी अरब में 1 के ऊपर कोशिश हो रही है। तो मुस्लिम ममालिक में ज्यादातर जगहों पर क्राइम रेट, खास तौर पर जहां पर इस्लामी कवानीन नाफिज है, क्राइम रेट बेइंतहा कम। रेप्स, हालत ये है कि साउथ अफ्रीका में ये रिपोर्ट्स हैं कि हर दूसरी औरत के ऊपर रेप अटेम्प्ट हो चुका है और हर चौथी औरत रेप की जा चुकी है। अमेरिका के अंदर भी ये फिगर 1:11 कही जाती है कि 11 के ऊपर हो चुका और हर चौथी औरत के ऊपर रेप टू अटेम्प्ट हुआ है। वहां की फैमिली सिस्टम का हाल देखिए कि 60 से 70% जो बच्चे हैं वो शादी के बगैर पैदा हो रहे हैं, शादी, और उनको या तो एक बाप का, माँ का प्यार मिल रहा है या सिर्फ बाप का प्यार मिल रहा है। एक बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा जो घिनौनी कत्ल की वारदात है, जिसे मैं कहता हूं कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे है, वो है एबॉर्शन, माँ के पेट में बच्चों का कत्ल। हर साल आपको मालूम है कि कितने लोगों का, कितने बच्चों को पैदा होने से पहले मार डाला जाता है, और अमेरिका जैसे कंट्री में बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है। 6 महीने के बच्चों को पेट से निकाल कर किस तरीके से उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं। हर साल 5 करोड़ से 7 करोड़ बच्चों को अबॉर्शन के जरिए मार डाला जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो, चूंकि उनको अपनी मस्ती चाहिए, उस मस्ती में वो सारी, उनको 18 साल की उम्र तक, आप ये अमेरिका में तो शायद उम्र जो मिनिमम मैरिज की है वो शायद 21 साल है, कुछ जगहों पर 18 साल है। 18 साल तक पहुंचते पहुंचते 60-70% लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और अबॉर्शन करा चुकी होती है। शादी की उन्हें इजाजत नहीं है। एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, लेकिन एक वक्त में बेग वक्त 50 मर्दों और औरतों से आप ताल्लुक रख लीजिए, उसके खिलाफ कोई कवानीन नहीं है। तो उन्हें सबसे ज्यादा सुसाइड्स उन्हीं कंट्रीज के अंदर हो रहे हैं। सुसाइड सबसे बड़ा एक इंडिकेशन होता है कि सुकून, इत्मीनान कहाँ है। सबसे ज्यादा सुसाइड्स वहां पर क्यों हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मर्डर्स वहां पर क्यों हो रहे हैं? तो वो जो सिस्टम है वो प्योरली, चूंकि इकोनॉमिक बेस्ड सिस्टम है, उनके पास में पैसे की ताकत है, पैसे की ताकत पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली, तमाम दुनिया भर के हथियार बना लिए, लेकिन इन चीजों से वो बज़ाहिरा तो लग रहा है कि बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन उनके अंदर जब झांक कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनसे ज्यादा जंगलियों का कानून कोई और नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आगे सवाल करने से पहले, ये जो आपका मौजू था, डॉक्टर जावेद जमील साहब जो मौजू दिया गया था वो तौहीद रिसालत आखिरत के ऊपर अप्लाइड इस्लाम के उन्वान पर दिया गया था। जी। उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन इन द लाइट ऑफ एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, इसके ऊपर इज़हार ख्याल किया था। उसमें बहुत ही अच्छे अंदाज में तौहीद के जो साइंटिफिक दलाइल हैं और आखिरत के वाक़ होने के साइंटिफिक जो दलाइल हैं उसके ऊपर आपने बात की थी। मैं समझता हूँ कि इसको और हम गहराई से जाने की जरूरत है। हमारे दीगर जो शुरा आज के इसमें प्रोग्राम में शरीक हैं, मैं समझता हूँ कि तौहीद रिसालत आखिरत के ऊपर अप्लाइड साइंस जो है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बुनियाद पर हमें गौर करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के ऊपर को ज्यादा अपनाया गया है, जबकि स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए था। और ये जो बात की है, प्रति सोची समझी साजिश के तहत लोगों को बहकाने के लिए काम किया गया है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि दुनिया अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल समझती है, बहुत तरक्की याफ्ता सोचने समझने और इंटेलेक्ट इंसान समझती है, तो उसके अंदर ये क्यों बात समझ में नहीं आ रही कि वीक प्रिंसिपल को हम पकड़ के भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल को पकड़ना चाहिए था।
तो लॉजिक तो यही कहती है ना, हमें स्ट्रॉन्ग व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, तो ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं देखिए इसकी और टॉप इंटेलेक्चुअल लोग इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? नहीं देखिए इसकी वजाहत मैंने उसमें की है कि स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल अल्टीमेटली खुदा की तरफ इशारा करता है, चूंकि वो बात कहता है कि ये सब जो इतना फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स है जिसके नतीजे के तौर पर आखिर में इंसान की तख्लीक हुई है, ये इतना फाइन ट्यून्ड प्री प्लान हो सकता है, ये अचानक कोइंसिडेंसेस के जरिए नहीं हो सकता, चूंकि वो प्री प्लान की बात कर रहा है। और प्री प्लान की जैसे जिक्र आएगा तो बात खुदा तक पहुंच जाती है, और जब खुदा तक पहुंचेगी तो बात मजहब तक पहुंच जाती है। उनके लिए मजहब इंतहाई नुकसानदेह है, उनके इकोनॉमिक और उनकी मार्केट पर्पस के लिए। मजहब आएगा तो लोगों के अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा, मजहब आएगा तो लोग शाम को मगरिब के बाद में होटल के जाने के बाद में घर में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। नौजवान बच्चे जो आज होटलों के अंदर रात को मस्तियां मारते हैं, वो अगर वो एक जगह मैंने एक मेरी पता नहीं आपने वो नज्म आलमी निज़ाम नौ पर सुनी कि नहीं सुनी, वो नज्म भी अवेलेबल है इंटरनेट पर, वो सुनिएगा कि अगर नेक नौजवान नस्ल नेक हो गई तो उनका तो सारा इकोनॉमिक मॉडल बिखर जाएगा, उनकी तो सारी आमदनी अल्कोहल से और होटलिंग से और डांसिंग से और म्यूजिक से और फिल्मों से और पोर्नोग्राफी से, ये तो मेजर उनके मनी स्पिनर्स हैं। अगर इनके ऊपर खत्म हो गया तो उनका तो सारे की सारी जो उनकी ताकत है, उनकी कुव्वत के जो जरिए हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इसलिए वो इरादतन वो ये चाहते हैं कि खुदा का तसव्वुर ना आए, चूंकि जैसे ही खुदा का तसव्वुर आएगा तो फिर ये भी आएगा कि भाई खुदा क्या चाह रहा है, खुदा क्या चाह रहा है, तो फिर ये आएगा कि खुदा क्या नहीं चाह रहा है। खुदा क्या नहीं चाहता ये उनके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इस चीज को वो कबूल नहीं कर सकते कि खुदा क्या नहीं चाहता। तो चूंकि वो तो मेजर, आज होमोसेक्सुअलिटी भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए वो बाहर रखना चाहते हैं मजहब को और खुदा के वजूद को, इसलिए उन्होंने वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया, स्ट्रांग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल को ಕನಾರೆ कर दिया। ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾವೇದ್ ಜಮೀಲ್ ಅವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ जुल्फिकार गुलबर्गा, डॉक्टर जावेद जमील साहब, ये अगले क्वेश्चन जुल्फिकार गुलबर्गा है, उनके एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछे। इट इज नोन दैट अल्लाह does not our worship, he does not need our worship, he does not make him small or big, then why has he created us? और एक सवाल, why does he need angels when he can do everything with just an order? Would you please explain about seven skies? ये 3 सवाल है। देखिए इसमें जो पहली बात, जो 7 स्काई 7 हेवंस की बात है, उसके लिए मैं टर्म 7 कॉस्मिक टीयर्स इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि बस अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, एक तबक दर तबक। जो पहला जो फर्स्ट कॉस्मिक टीयर या स्काई है, वो हमारे जो जमीन का जो एटमॉस्फेयर है, जो इसका जो पूरा जो ग्रेविटेशनल स्फीयर है, अल्लाह कुरान में आ रहा है कि हमने आसमान से पानी बरसाया, आसमान में परिंदे उड़ते हैं, वो सारी चीजें कुरान के अंदर मौजूद है। तो जो जमीन का पूरा जो चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल स्फीयर है, ये पहला फर्स्ट कॉस्मिक टीयर है, पहला आसमान है। दूसरा आसमान कुरान ने कहा कि बस ज़य्यना समात दुनिया बिकवाकिब, उसमें अलग अलग आया कि एक समात दुनिया जिसको कुरान ने कहा है वो सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का मतलब सन है, सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जिनमें से प्लैनेट्स की अब वो तब्दील होती रहती है। अभी समझा जा रहा है कि 7-8 प्लैनेट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 11-12 प्लैनेट्स हैं, और उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड जो छोटे प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं, जिनको कुरान ने लफ्ज उसके लिए मसाबी इस्तेमाल किया है। फिर उस मेटियोर्स हैं जिसके लिए कुरान ने शिहाब साकिब लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो ये जो सेकंड कॉस्मिक टीयर है, इसमें सूरज का जो सोलर सिस्टम है और उससे रिलेटेड प्लैनेट्स और उनके प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, ये सेकंड कॉस्मिक टीयर है। फिर बस कुरान ने कहा बस समाई जातिल हुबुक, अब हुबुक का अगर तर्जुमा करें तो वो मिल्की वे तकरीबन उसकी तरफ इशारा करता है, वो एक गैलेक्सी है।
अगली जो स्टेज है वो गैलेक्सी की है। फिर गैलेक्सी के बाद में एक यानी बहुत सारे स्टार सिस्टम्स मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। उसके बाद में बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्लस्टर बनाते हैं जिसको हम कह सकते हैं फोर्थ आसमान। फिर बहुत सारे क्लस्टर्स मिलके एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं जिसको हम फिफ्थ आसमान कह सकते हैं। फिर कुरान ने इशारा किया कि वस्समाई व तारिक व नजमुस साकिब। तारिक, ये तारिक लफ्ज जो है एक यानी जो सबसे ज्यादा चमकदार सितारा है। एक क्वाजर्स होते हैं, जो क्वाजर्स सबसे ज्यादा शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं और सबसे दूर हैं। जितनी कायनात इंसान देख सकता है उनमें सबसे दूर आखिर में वो क्वाजर्स हैं। तो वो जो एक बहुत बड़ा जिस सिस्टम है वो 6th लेयर है। और 7th जो है पूरी फाइनल जो घेर रखा है जिसने पूरी कायनात को, वो 7th कॉस्मिक टेयर है। और 7th कॉस्मिक टेयर में ही बहुत सारे जो अल्लाह के ऑफिसेज हैं, लोहे महफूज है और बैतुल मामूर है, वो सारी चीजें उसका 7th कॉस्मिक स्क्वायर। उसके बाहर अल्लाह ने चारों तरफ से इस कायनात को घेर रखा है। तो ये तो 7 आसमान के बारे में बात हुई। और दूसरा सवाल उन्होंने किया था कि अल्लाह को जरूरत क्या है। अल्लाह को फिल वाक़े अगर अल्लाह ताला चाहता तो अल्लाह को कायनात बनाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि उसको पहचाना जाए। क्योंकि अब पहचानने के लिए पहले कायनात बनाई, कायनात में जितने चीजें बनी उन्होंने अल्लाह को पहचाना मगर कॉन्शियसली नहीं, इनहेरेंटली पहचाना। उसके बाद अल्लाह ने चाहा कि एक ऐसी मखलूक पैदा करूं जो कॉन्शियसली अल्लाह को पहचाने और अल्लाह के अहकामात पे। वर्शिप का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं या अल्लाह कर रहे हैं या तस्बीहात पढ़ रहे हैं। वर्शिप से मतलब है कि हमारा पूरी जिंदगी की तमाम तर मामलात अल्लाह के अहकामात के दायरे में हों। और वो अल्लाह ने कोई अपनी मर्जी के लिए नहीं किया कि उससे अल्लाह को फायदा हो रहा है, बल्कि वो इंसान ही के लिए पैदा किया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो अल्लाह को क्या जरूरत थी कि नमाज को इस तरीके से कि साहब आप पहले खड़े हो जाइए, फिर रुक जाइए, फिर सजदे में चले जाइए, फिर वापस घूम जाइए। इस उठक बैठक की अल्लाह को जरूरत नहीं थी। अल्लाह तो कह सकता था कि आप चुपचाप बैठकर बस अल्लाह 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 या सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने नमाज को और वजू के निजाम को भी इतनी खूबसूरती से तरतीब दिया कि उससे इंसान का फायदा है, अल्लाह को नहीं फायदा पहुंच रहा है। अल्लाह तो बस ये है कि अल्लाह को इस बात से खुश हो रहा है कि मेरा बंदा मेरा अहकाम मान रहा है और उसके बदले में वो अपने यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है जिसका उसको बदला देगा। लेकिन वो अगर नमाज के अंदर मुख्तलिफ अज्जा किए गए हैं तो उसका फायदा इंसान को दुनिया में हो रहा है। सजदे के अंदर जब मैं MBBS 2nd ईयर और 3rd ईयर में था, मैंने वजू के ताल्लुक से बहुत बड़ी एनाटॉमिकल एनालिसिस एक की थी, फिर सजदे के ताल्लुक से मेडिकल एनालिसिस किया कि वजू के अंदर मैंने ये देखा कि जो ब्रेन के अंदर एक पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है, उस पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर तमाम जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका एक सीक्वेंस के साथ एक है। मैं देखकर दंग रह गया कि वो सीक्वेंस एग्जैक्टली वो है जो हम वजू के अंदर फॉलो कर रहे हैं। पहला मुंह में पानी डालते हैं, फिर नाक धोते हैं, फिर ये हिस्सा धोते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर सर पे आते हैं। एग्जैक्ट वही सीक्वेंस जो ब्रेन में वहां फॉलो हो रहा है। सजदे के अंदर इंसान की जितने पोस्चर्स हो सकते हैं उनमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा फायदेमंद पोस्चर है वो सजदा है, जिसको वहां पर कहा गया मोमडस प्रेयर पोजीशन, कि जिसके अंदर इंसान का हार्ट, इंसान का लंग्स, इंसान का दिमाग बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा होता है, मैक्सिमम। तो अल्लाह ने नमाज को भी इस तरह तरतीब दिया कि जिससे जो है इंसान को फायदा हो रहा है। उसने रोजे का तसव्वुर रखा, फास्टिंग की, वो भी इंसान की है, इंसान की मजमूई सेहत की तरफ है। अगर उसने ज़कात का निजाम रखा वो भी इंसान के लिए है। तो उसने जितने वर्शिप के तरीके रखे हैं वो असल में अपने अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अल्लाह ने इस तरह तरतीब दी है कि इंसान के लिए हो। लेकिन जब इंसान अल्लाह का हुक्म मानकर ये काम करता है तो जाहिर है उसका मकाम बढ़ता है और अल्लाह उसको बदला देने के लिए, क्योंकि अगर वही काम आप कि अल्लाह के लिए ना करके किसी और के लिए कर रहे हो तो जाहिर है फिर अल्लाह के ऊपर ये लाजिम नहीं है कि आपको उसका बदला दे। लेकिन जब आप जी सॉरी वो कनेक्शन बीच में हो गया, टूट गया जी। तो वर्शिप भी दरअसल इंसान ही के फायदे के लिए, इंडिविजुअली भी, फैमिली भी और पूरे ओवरऑल लार्जर ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए तमाम वर्शिप के तरीके जो पूरा सिस्टम है उसी के लिए है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ತಮ್ದು? ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್.
प्रश्न थे हम्म तो मैं अभी पूछ रहा था सवाल, वो जुल्फिकार साहब पूछे हैं वही सवाल है। जी जी ठीक है, जजाकल्ला। वो आम लोगों को कैसे बताना, वो आम लोगों को सात आसमान के बारे में कैसे हम लोग प्रूव कर ಆ सकते हैं? ಪ್ರಶ್ನೆ मतलब ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು आप जो बोले ಇನ್ಶಾಲ್ಲ। ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. ಈಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಇಲ್ಕಲ್. अगर 7 आसमान के सिलसिले में आप लोग जरा तफसील से पढ़ना चाहें तो डॉक्टर जावेद जमील और 7 हेवंस इतना आप टाइप करके गूगल कर लीजिए तो आपको एक मुख्तसर भी कुछ जगहों पर मिल जाएगा और डिटेल में चाहें तो वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल गफ्फार इलकल। जी, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, मैं जिले बागलकोट इलकल से हूँ। मेरा सवाल दावती काम के सिलसिले में है। वैसे मेरे दोस्त बहुत सारे दलित हैं। अब हम जब दावती काम करना चाहते हैं तो अगर कोई आदमी किसी खुदा को मानता हो या किसी मजहब को मानता हो तो हम आसानी से उसको कन्विंस कर सकते हैं। अगर एक नास्तिक होता है, कोई धर्म को नहीं मानता या कोई खुदा को नहीं मानता, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सारी दिक्कतें हमको पैदा होती हैं। तो अगर वो अगर हम खुदा के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि ये सब साइंस से बना है। जैसा वो मिसाल देते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी हो गया है, वो अपने आप क्रिएट होता है निजाम में, ऐसा वो बहस करते हैं हमसे। तो उनको किस तरह के खुदा के तस्वुर को, वजूद को हम बताने में गालिबन आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना। अगर वो आप लेक्चर पूरा सुन लेंगे तो उसमें इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है कि मैंने उसमें बहुत तफसील के साथ समझाया है कि कोई भी जो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर या हाइड्रोजन के अंदर कोई इंटरनल ऐसा कोई इंटेलिजेंट सिस्टम मौजूद नहीं था कि वो सब का सब प्लान कर सकता। ये सब का सब पूरी तरीके से एक चीज, एक वायरस की स्ट्रक्चर, एक सेल की स्ट्रक्चर, एक एटम की स्ट्रक्चर, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उतनी ज्यादा हाईली एडवांस्ड है कि कोई उसको वो खुद तो क्या समझे, उसको कोई समझ जब तक कि बिल्कुल ही कोई बहुत बड़ा कोई आलिम ना हो जो अल्लाह ही हो सकता है कि जो उस स्ट्रक्चर को पैदा करके और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन, देखिए कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। वो सारी चीजें यानी इंसान पैदा हुआ, इंसान ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, किस तरीके से पूरे आसमान के अंदर चीजें उभरती हैं। कुरान ने भी जिक्र किया है कि किस तरीके से बादल बनते हैं, बादल बन के पानी बरसता है। तो इतना वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ये सिर्फ जब ही हो सकता है कि जब कोई इसको कोई कोऑर्डिनेट करने वाला है और जो इतना पावरफुल है और इतना उसका सिस्टम इतना मजबूत है कि वो बगैर किसी टाइम गवाए हुए वो पूरी कायनात के एक कोने को रेगुलेट कर सकता है। उसके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता। मैंने उसमें भी मिसाल दी थी कि मैं आपके सामने अगर मैं हूं तो देखिए कि इसके बीच में कितनी बड़ी प्लानिंग है। आप मुझको सुन पा रहे हैं? और क्या कोई ये मान ले कि नहीं साहब पहले माइक पहले लोहा इकट्ठा हुआ और खुद ब खुद एक माइक बन गया और फिर खुद ब खुद एक इंटरनेट वजूद में आ गया और खुद ब खुद एक कंप्यूटर वजूद में आ गया। खुद ब खुद सारी चीजें खुद ब खुद कभी कुछ नहीं हुआ करता है। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮೀರ್ ಮುಕಾಮಿ ಮಂಗಳೂರು के अशरफ साहब। डॉक्टर साहब, हर तख्लीक के पीछे खुदा है या अल्लाह है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? एक सवाल उम्मन ये पूछा जाता है। दूसरा सवाल यह है कि हम देखते हैं कि कुरान के अंदर जो लोगों को खिताब किया गया है तो आमतौर पर ईसाइयत और बनी इसराइल के कौम वगैरह को कॉमन होने की हैसियत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को के औलाद हो आप बोल के उस तरह से कॉमनलिटी के तौर पर उनको लाकर उनसे खिताब किया जाता है। तो लेकिन यही चीज हम यहाँ इंडिया के, जबकि इंडिया चाइना जो है पूरे मुल्क इसके इस जमीन के ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर या तो है कि हमें कोई एक कॉमन प्रॉफिट यहाँ इस एरिया में जो रसूल या पैगंबर आए उनका नाम नहीं मिलता, या इनको कुछ इस तरह से हम कॉमन चीज से जो हम उनसे मुखातिब कर सके ऐसी कोई चीज हमें नहीं मिलती है। तो इसका बारे में कुछ
देखिए, पहला जो सवाल किया, ये अक्सर सवाल होता है कि साहब सब चीजों को खुदा ने पैदा किया, तो खुदा को किसने पैदा किया? देखिए, साइंस में इवन आइंस्टाइन की थ्योरी में बात आई कि हर कॉज के पीछे, हर जो भी कुछ होता है इफेक्ट, उसके पीछे एक कॉज होता है, और उसके पीछे एक कॉज होता है, उसके पीछे एक कॉज होता है, और अल्टीमेटली आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हर चीज का डिसीजन बिग बैंग में हो जाता है कि वहां पर कॉज होता है। अल्टीमेटली हम चूंकि अगर ये कहें कि खुदा को किसी ने पैदा किया, तो फिर सवाल होगा कि जिसने खुदा को पैदा किया उसने पैदा किया। इस जगह पर जाकर हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कॉज नहीं है बल्कि कॉजर है, वो सबब नहीं है बल्कि मुसब्बब है, वो उसको किसी की फर्दर उसकी जरूरत नहीं है, जहां पर जाकर जिसके बियॉन्ड हम नहीं सोच सकते, बस उसको वो खुदा है। उससे आगे कुछ और है तो वो खुदा ही हमको बता सकता है क़यामत के बाद में, उससे आगे हमारी पहुंचने की हमारी सकत नहीं है। लेकिन एक हमें कॉजर का मानना जरूरी है, जो उस कॉजर वो कॉजर खुदा है। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया, देखिए इसमें एक बड़ी तादाद में लोग ये लिखते आए हैं पहले से भी कि हिंदुस्तान के अंदर भी और चाइना के अंदर भी पैगंबर, दुनिया में कुरान कह रहा है कि हर जगह हमने भेजे हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि मेरी खुद जाती तहकीक में मेरा ये मानना है कि रामचंद्र जी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ही शख्स के दो नाम है, और इन्होंने वो हजरत इब्राहिम की थ्योरी को जब ये लोग आर्यंस इंडिया आए तो इन्होंने उसका एक इंडियनाइज वर्जन पेश किया। क्योंकि अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर अगर आप हजरत इब्राहिम की स्टोरी पढ़ेंगे तो उनका शुरू में जो नाम जो होता है वो अब्राम होता है, यानी अब के माने हैं हिब्रू के अंदर फादर, यानी पिता फादर राम। और उसके बाद में उनके फादर ने उनको वहां से निकाल दिया जाता है, और उसके बाद में वो अपनी वाइफ सारा, अब सारा को देखिए सीता से मिलता जुलता नाम है, और हजरत लूत के साथ में वो यहाँ पर लक्ष्मण का तस्वुर है, उनको साथ लेकर वो इजिप्ट के अंदर आते हैं। इजिप्ट में उस वक्त का फिरौन, क्योंकि फिरौन तो एक लंबी पूरी डायनेस्टी है जो फिरौन की कहलाती है। एक डायनेस्टी वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थी। उस वक्त के फिरौन ने हजरत सारा का किडनैपिंग कर लिया, ये पूरा बाइबल के अंदर मौजूद है। और फिरौन में से अगर आप फा निकाल दीजिए तो रावण बच रहा है। तो वो उनकी किडनैपिंग हुई। सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर ये दिखाया गया बाइबल के अंदर कि जब भी वो फिरौन सारा के करीब आने की कोशिश करता था तो उसके बदन पे कपकपी तारी होनी शुरू हो जाती थी, एक फालिज जैसे असरात होने शुरू हो जाते थे। उसके दिमाग में आज खुद ये जहन में आ गया कि ये कोई ना कोई ग्रेट लेडी है। फिर उसने मालूम कराया तो उसको मालूम हुआ कि इनके हस्बैंड जो इब्राहिम है वो बहुत ग्रेट सेंट है, तो उसने आज खुद उनको रिहा कर दिया। यहाँ पर यह है कि बाकायदा जंग हुई, सिर्फ इतना फर्क है। वहां भी हजरत इब्राहिम के दो औलाद को हम जानते हैं, हजरत इस्माइल इसहाक, यहाँ भी राम के दो औलाद लब और कुछ जानी जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह कृष्ण के बारे में और मूसा के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते आए हैं। हजरत नूह की स्टोरी को भी यहाँ मनु स्मृति और मनु जो है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो लेकिन ये कि उन तफसीलात में भी ना जाया जाए, तो इतना तो कम से कम तय है कि हिंदुस्तान के अंदर भी पैगंबर आए हैं। उनको ये बताने की जरूरत है कि भाई चूंकि सारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टोर्ट हो गई है, इसलिए उस हकीकत में एग्जैक्टली कौन था और कौन नहीं था इसके बारे में पता लगना आज की तारीख में बहुत मुमकिन नहीं है। कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो उनकी उसका हिस्सा नहीं है, उस जनरेशन का हिस्सा नहीं है, उनका जिक्र कुरान में मिलता है। तो वो सारे ऐन मुमकिन है कि वो चीन के अंदर या ये हिंदुस्तान के अंदर उनका नाम हो। उन पर तहकीक, ये हमारी भी कमी है कि हम लोगों ने उन पर उस अंदाज से तहकीक नहीं की जो उसका हक था। उनको इंडिविजुअल्स का नाम लेना अलग बात है, लेकिन उनको ये समझाने की जरूरत है कि सारी दुनिया के अंदर अल्लाह ने पैगाम भेजा, और बुनियादी पैगाम ये था कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी की इताअत ना हो, और दुनिया में जो कवानीन है वो इंसान की जिंदगी की फलाह और बहबूद के लिए जो अल्लाह ने कवानीन भेजे हैं उनको माना जाए। और उस कड़ी में से आखिरी कड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ಜಜಾಕಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್, ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರದಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಮೈರಾ ಕಾರ್ಕಲ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ डॉक्टर जावेद जमील साहब, एक क्वेश्चन है इधर चैट बॉक्स में. मोहम्मद मुस्लिम फ्रॉम यादगीर, हाउ टू एक्सप्लेन रिसालत इन साइंटिफिक वेज. ಅದರ ನಂತರ ಹುಮೇರಾ ಕಾರ್ಕಲ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್.
देखिए ये सवाल अपने आप में एक पूरा लेक्चर का तकाजा करता है रिसालत पर, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी बात जरूरी है कि अल्लाह को, चूंकि अगर अल्लाह ने किसी फरिश्ते को रसूल बना दिया होता, या अल्लाह ने किसी तो लोगों के पास सवाल ये हो जाता कि भाई फरिश्ता तो जो है वो हम जैसा नहीं है, उसकी इनहेरेंट नेचर हम जैसी नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर हम जैसी नहीं है, वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा ताकि वो इंसान के लिए रोल मॉडल हो सके। अगर वो कुछ ऐसी सुपर नेचुरल चीजें आ गई होती जो मालूम हुआ कि इंसान की तरह के नहीं है, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, ये इसके अंदर कुछ खास कुव्वतें हैं, कुछ खास ताकतें हैं। इसलिए अल्लाह ने रसूलों को इस अंदाज से भेजा कि उनको बाकायदा वो इंसान ही थे। ये बड़ी वजाहत कर दी गई कुरान में कि वो पूरी तरीके से इंसान थे। वो बाकायदा एक माँ के और एक बाप के औलाद थे। वो बाकायदा उन्होंने ग्रोथ हासिल की, और ग्रोथ करने के बाद में वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद में जो कुछ वो कह रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से पैगाम उनको पहुंच रहा है, वही आ रही है और नुज़ूल हो रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वही और नुज़ूल में भी फर्क है कि वही जो है इंसान के जहन में अल्लाह ताला बरह रास्त कम्युनिकेट करता है, लेकिन नुज़ूल बाकायदा चीज लेकर एक फरिश्ते के जरिए वो उस तक पहुंचती है। तो वो अल्लाह ने एक तरीका इख्तियार किया कि चूंकि अगर हिदायत का बेस्ट तरीका यही था कि रोल मॉडल्स पैदा किए जाएं, रोल मॉडल जो इंसान ही जैसे हों, जो इंसानों को जमा कर सकें, जिनके अंदर जो पूरा एक फैमिली का पार्ट हो। चूंकि इंसान एक इंडिविजुअल है, एक फैमिली, एक सोसाइटी है, तो ऐसी ही मखलूक के जरिए पैगाम पहुंचाया जा सकता था जो इनमें इंसानों से इंसान ही का पार्ट है हर तरीके से। तो इसलिए रसूल को भेजा गया। अब बाकी सवाल ये होता है कि वही और नुज़ूल, तो जाहिर है वो एक हायर सिस्टम था कि किस तरीके से अल्लाह ने कम्युनिकेट किया, फरिश्ता कैसे लेकर आता था। वो चीजें हमारी बहुत सारी चीजें अभी इंसानी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, क्योंकि इंसान की सोच बड़ी लिमिटेड है, इंसान के ज़राए बड़ी लिमिटेड है। साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर इंसान किसी चीज को देखने के लिए लाइट पर मुनसर है। लाइट की एक बहुत मुख्तसर सी रफ्तार है, बहुत छोटी सी रफ्तार है। कहने को हम समझते हैं लाइट बहुत तेज रफ्तार है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जिन चीजों को हम जानते हैं रफ्तार, उस एतबार से लाइट की सबसे ज्यादा रफ्तार है। लेकिन लाइट की रफ्तार भी इतनी कम है कि अगर आप पूरी कायनात के हिसाब से देख ले तो अरबों साल गुजर गए। ऐसी जगह है कि जहां से लाइट अभी तक जमीन पर नहीं पहुंच सकी है। सूरज से लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मुझे प्रेजेंटली देख रहे हैं, आप सभी समझ रहे होंगे कि हम आपको प्रेजेंटली देख रहे हैं, लेकिन नहीं, यह गलती मत करिएगा कभी भी। यह गलत सोच है। आप मेरा प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं, आप मेरा पास्ट देख रहे हैं, चाहे वो आधे सेकंड या आधे सेकंड से भी कम, 1/1,00,000 सेकंड का पास्ट हो। क्योंकि लाइट मेरे तक पहुंच के इसमें पहुंच रही है, लाइट को पहुंचने में आप तक कुछ ना कुछ वक्त लग रहा है, चाहे वो 1 सेकंड का बहुत छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो। तो इंसान प्रेजेंट भी नहीं देख सकता, इंसान सिर्फ पास्ट देखता है। इंसान की मजबूरियां इतनी है। इंसान जो आज आपको आसमान दिखाई देता है, इसमें से बेशतर हिस्सा ऐसा है, जो सितारे दिखाई देते हैं, जो जहां आपको दिखाई दे रहे हैं वहां आज है ही नहीं। वो उनमें से कुछ हजारों साल पहले वहां थे, कुछ लाखों साल पहले वहां थे, कुछ करोड़ों साल पहले वहां थे। आप उसे आज की तारीख में देख रहे हैं, लेकिन उनमें से पता नहीं कितने सितारे ऐसे हैं जो वहां से शायद गायब भी हो चुके हों। तो इंसान इतना महदूद है, इंसान की नॉलेज इतनी महदूद है कि अभी कयामत तक होते आज से हम 200 साल पहले इंटरनेट का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, तस्वुर नहीं कर सकते थे कि मैं आपसे बात कर सकूंगा। उसमें हदीस में आया है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो जिस पूरी बराह रास्त लोगों से बात कर सकेंगे, पूरी दुनिया के अंदर देख सकेंगे। तो वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, इंसान की नॉलेज डेवलप हो रही है। लेकिन वो भी कितनी भी नॉलेज डेवलप हो जाए इंसान की ता क़यामत, उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो लाइट पर मुनसर है। लाइट की स्पीड बहुत मुख्तसर है, लाइट से बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाली चीजें अल्लाह ने बनाई है, जिनमें फरिश्ते भी वो है। क्योंकि कुरान ने रिलेटिविटी इफेक्ट की तरफ भी इशारा किया है कि उमूर चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जो तुम्हारे शुमार के मुवाफिक 1000 साल के बराबर है। फरिश्ते चढ़ते हैं ऐसे दिन में जो 50,000 साल के बराबर है। तो ये रिलेटिव टाइम डायलेशन का जो आइंस्टाइन की थ्योरी है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है।
लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा स्पीड फरिश्तों की है, तो वो फरिश्ते अभी इंसान की पहुंच उस तक नहीं पहुंच सकी कि वो फरिश्तों को पहचान लें, वो फरिश्तों को देख सकें। अभी तो हम जिन्नात को भी नहीं समझ सकें पूरी तरीके से कि जिन्नात क्या है। तो इंसान की नॉलेज बड़ी अनसर्टेनिटी है। जब आप क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, तो उसमें ये बात वजाहत के साथ लिखी है कि इंसान की अनसर्टेनिटी ऑफ नॉलेज कितनी ज्यादा है, इंसान कितना मजबूर है। कभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, उसकी नॉलेज महदूद रहेगी। ಜಿ ಜಜಾಕಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ, 12 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 5, 6, 7 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ. ಅದರ ನಂತರ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವವರು ಈಗ ಹುಮೇರಾ ಕಾರ್ಕಲ ಅವರು. 1 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್, RM ಸಿದ್ದಿಕ್, ರಜಾ ಮಾನ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸೈಯದ್ ಅಸ್ಲಾಂ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇರದಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹುಮೇರಾ ಕಾರ್ಕಲಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು तम प्रश्न केलಬೇಕಾಗಿ विनंती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उर्दू में सवाल पूछने के लिए कोशिश करती हूँ। हमारा इंडियन मुसलमानों में हम लोग हिंदू भाइयों के बीच में रहते हैं, उनका परसेंटेज 75% से भी ज्यादा है, तो उनके साथ हमारा काम ज्यादा रहता है। तो उनका तौहीद का, रिसालत का, आखिरत का तीनों कॉन्सेप्ट उनमें है, बट उनमें से बीच वाला जो रिसालत हम लोग उनको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट जो तौहीद है उसमें उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, कि क्योंकि उनका गॉड का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है कि वो गॉड इंसान के रूप में आता है, गॉड इंसान का रूप लेकर आता है। ये उनका कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन करने, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि आखिरत का कॉन्सेप्ट उनमें है, पुनर्जन्म बोल के है, बट उन लोग ऐसे बोलते हैं कि एनिमल का रूप लेके आएंगे, इस दुनिया में जो किया हुआ कर्म का फल लेके हम लोग दूसरे जन्म में ऐसा पनिशमेंट के इसमें हम लोग इसी दुनिया में फिर आएंगे। इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको? पहला क्वेश्चन क्या पूछा? पहला गॉड कॉन्सेप्ट रहता है उनमें, हाँ। बट उन लोग बोलते गॉड इंसान के रूप लेता है। अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गॉड एब्सोल्यूट है, गॉड एक लम्हे के लिए भी महदूद नहीं हो सकता। अगर वो इंसान का रूप लेता है तो इसका मतलब एक वक्त के लिए वो लिमिटेड हो गया, एक वक्त के लिए वो डिपेंडेंट हो गया। जब वो इंसान का रूप लिया तो उसने जाहिर है अपने माँ बाप के, एक माँ बाप हो गए उसके जिन्होंने उसको पैदा किया, उसने बाकायदा जन्म लिया है। जब वो बड़ा होता है, वो खाने पर मुनहसर है, वो चलने पर मुनहसर है, तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी एक लम्हे के लिए भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता। अल्लाह ताला पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए किसी चीज के ऊपर जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से पूरी तरह उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि चूंकि फिर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर एग्जांपल कृष्ण को मान लें कि वो गॉड का रूप है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि कृष्ण काले थे तो इसका मतलब काला जो है गोरे के ऊपर सुपीरियरिटी हो गई, कृष्ण मेल थे तो मेल्स को फीमेल्स पर सुपीरियरिटी हो गई। तो वो इतने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं कि वो चलने वाली चीज बिल्कुल खत्म नहीं है। एक जब तक हम एब्सोल्यूट गॉड के तसव्वुर को नहीं, और गॉड को दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। गॉड इंसानों में से उसने चूज किया, उनको पूरी तरीके से डायरेक्शन दे रहा है, समझा रहा है क्या करना है। वो इंसान फिर वो गॉड अगर अवतार बन के आ रहा है तो वो, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो इंसानों के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। वो तो इंसान ये कहेगा कि भाई ये तो गॉड है, अपने हिसाब से उन्होंने ये सब कर सकते हैं, हमारे बस की बात कहाँ है। तो इसलिए इंसान को ही रोल मॉडल बनना है। वो कोई गॉड का इनकारनेट इंसानों का मॉडल नहीं बन सकता। दूसरा सवाल पैदा होता है कि वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट और क़यामत का, उनसे ये पूछने की जरूरत है कि देखिए इस्लाम में, कुरान में बड़ा वाज़ेह कॉन्सेप्ट है।
कि भाई, और दुनिया में कानून का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको सजा मिलती है तो आपको मालूम होता है कि आपको किस जुर्म की सजा मिली। आपको सजा नहीं दी जा सकती ये आपको पता ही ना हो कि आपने क्या जुर्म किया, या आपको इनाम भी दिया जाता है तो वो भी बताया जाता है कि भाई आपको किस वजह से इनाम दिया जा रहा है। इंसान को आज कोई मुझको लाकर 1 करोड़ रुपया दे दे अचानक, तो जाहिर है मेरे जहन में सवाल आएगा कि भाई ये 1 करोड़ रुपया मुझे मिल क्यों रहा है। या अगर कोई मुझे फांसी की सजा दे दे तो ये उनको कानून को ये वाजे करना पड़ेगा कि इसका रीजन ये है। तो वहां पर जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, उसमें इंसान को अगले जन्म में आ गया इंसान, उसको ये पता ही नहीं है कि पिछले जन्म में उसने क्या गुनाह किया था या क्या अच्छा किया था जिसकी वजह से ये जिंदगी उसकी अच्छी या बुरी गुजर रही है। तो इस्लाम में बड़ा वाज़ेह है कि एक दुनिया है, इस दुनिया में आप जर्रा बराबर भी नेकी करेंगे उसका भी आपको बदला मिलेगा, जर्रा बराबर भी बदी करेंगे उसका भी जर्रा बराबर मिलेगा। और जब अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा हिसाब किताब आपके सामने होगा। आपको एक एक चीज की नॉलेज होगी कि आपको ये मार्क्स किस चीज के मिले। ये पूरी मार्क शीट है आपकी, इसका आपको 1 नंबर मिला है, इसका आधा नंबर कटा है, इसके 5 नंबर मिले हैं, इसके 2 नंबर कटे हैं, इसके 10 नंबर मिले हैं, इसके 3 नंबर कटे हैं। वहां पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपके सामने होगी। यहाँ पर ये तसव्वुर के साथ इंसान पिछले जन्म में वो इंसान था, बंदर बन गया और उसको पता ही नहीं कि भाई मुझसे गलती क्या हुई थी जो मुझे बंदर बना दिया गया, या पिछले जन्म में बंदिर साहब इंसान बन गया कि भाई मेरे से क्या अच्छा हुआ था जो मुझे ये बना दिया गया। तो वो ये पूरा का पूरा बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो जिसका सिर्फ और सिर्फ जवाब एक दुनिया और एक आखिरत में ही मुमकिन है। ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಯಾರದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ವಿರಾಜ್ಪೇಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾವೇದ್ ಜಮೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ತೌಹೀದ್, ರಿಸಾಲತ್ ಮತ್ತೆ ಆಖಿರತ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ದೋಟಿಹಾಲ್. ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಯಾರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅಮೀರ್ ಅಲ್ಕಾ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. अस्सलाम वालेकुम. लतीफ अहमद बल्लारी. बस मेरा सवाल यह है कि अखामत दीन के लिए जो है गवर्नेंस चाहिए और ये इस्लामिक जैसी हुकूमत होती है वैसा इम्प्लीमेंट करते हैं. अब हम दावत के जरिए जो है हम हिंदुस्तान में कैसा काम कर सकते हैं इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए, लोगों को कैसा इकट्ठा कर सकते हैं हम. आपकी हालत में जो है हम खुद बिखरे हुए हैं. और वीडियो दयविಟ್ಟು वीडियो के बारे में कुछ सवाल आते तो पूछे. आप हम रिकॉर्डेड वीडियो भेजे थे, उसके बारे में कुछ सवाल आते हैं तो भेजिए. नहीं देखिए रिकॉर्डेड वीडियो के बारे में उसके बारे में इंशाल्लाह अमीर अल का आपको समारोह में बोलेंगे. वीडियो के बारे में कुछ सवाल है तो अब बिल्कुल आखिर में 5-6 मिनट के लिए कर लीजिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कभी और प्रोग्राम रख लीजिएगा. जी इंशाल्लाह. मेरी भी अब ताकत जवाब दे रही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद असलम साहब. आखिरी सवाल सैयद असलम साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. Our religion is a complete system covering all aspects, but we do not follow the system in general. This has a negative impact on what we are preaching or inviting for. How to manage the damage control? My book Muslim Vision of Secular India Destination Roadmap is all about this. Actually, we have to work at multiple levels. Because if we just choose what mistake we have been doing is that we are for last 40 years, 50 years, 60 years we have been just sticking on 2 things.
One group is always talking of education, 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 and the other group is always talking of deen, deen, deen. And for them, deen means just to offer prayers, to have the fasting, and to pay zakat, and to do hajj. Just theological aspect. For them, deen is just theology. We have to work at 4 levels. In that book, I have argued that we have to work at 4 levels. Number 1 is what I call ideological empowerment. Ideological empowerment means we must know the application part of Islam in this modern world. How Islamic system can be applied in this modern world. And for that, what is necessary is that we must know what is the modern world. Unless we understand the philosophies governing the modern world, the systems which are prevalent in the modern world, whether it is legal system, whether it is health system, whether it is political system, economic system, we cannot find out their negatives, and we cannot present Islam as an alternative system. So we have to know. This is why I am stressing the use of applied Islamics. I am asking that applied Islamics should be part of curriculum in every single madrasa. Unfortunately, nobody is listening. So that part, ideological empowerment, we should also know the statistics related to the answers. For example, if some people do claim that Muslims are terrorists, and we immediately become defensive in approach, and we start saying, no, Islam does not promote peacelessness, Islam does not promote violence. No, this is not the way to answer. Show them the real figures of violence. When this question was asked to me in Banaras Hindu University 3 years back in a conference which was organized by pro-RSS people, then I told them that, look, in last 35 years or 40 years, in India, there have been around 40,000 or 35,000 terrorist-related deaths. Out of those deaths, only 1,500 are alleged to have been committed by Muslims. Only allegations, they are not proven. Rest 33,500 have been committed by non-Muslims, whether they are Naxalites, whether they are Ulfa, they are Bodos, or whatever they are. In census, they are all written as Hindus, most of them. Some may be Christians, some may be Buddhists, but majority of them in census are written as Hindus. At the world level, if you even search the American website, they will show that Al-Qaeda killed around 5,000 people till now, 6,000 people, including those 3,000 on Twin Tower. In response, America killed 35 lakhs people in Afghanistan and Iraq and many other parts. So we have to highlight these facts. See the ratio of violence. When I was in BHU, I asked them, okay, look, this is my policy, that I believe in condemning every single innocent death, irrespective of who is the victim, what is the identity of the victim, irrespective of what is the identity of the perpetrator. And keeping in that mind, for example, if I condemn Muslims 6,000 times for killing 6,000 people, I condemn America 35 lakh times for killing 35 lakhs people. Are you ready to condemn America 35 lakh times? There was absolute silence. When I asked about India, again, I asked them, I am ready to condemn Muslims 1,500 times, but I will have to condemn Hindus and other non-Muslims 33,000 times. Are you ready to condemn with me? There was absolute silence. So we have to, this is why I say our approach should be just not defensive. It should be aggressive, intellectually aggressive approach. We have to show them the figures. Once we start showing them the figures, then they will come on defensive. Then after ideological empowerment, the second most important is social empowerment, which includes number 1, education. Number 2, empowerment of women within Islamic parameters. Number 3, campaign against social evils, including alcohol, gambling, dirty sex, all these things. Then number 3 is economic empowerment. Economic empowerment, Muslims must contribute to economy. Economy is the good economy is the backbone of everything. Dangerous economics is bad, but good economics is must. We must involve ourselves in all types of businesses, from small scale to corporate level business.
out of 1,000 listed companies in India, only 10 to 11 companies belong to Muslims. Why? Why Muslims are not getting involved in business? They have to get involved in business. They have to produce money. If I divide Islamic economics, number one, we must first produce money. Wealth generation is the first important point. Wealth generation through halal methods. Number two, this generation of money now, this should be distributed. First way of distribution is through spending in good deeds. And the third spending is spending for welfare activities through zakat, through ushur, through homes, etc. And next important thing is campaign against dangerous economics. So economic empowerment. And then lastly, political empowerment is also extremely essential. We must, political empowerment does not simply mean that we should have more MLAs or MPs or municipality corporations. Political empowerment means that we must be in a position to raise issues, to make the government feel that these are the issues to be addressed, and those issues should not just belong to Muslims. These issues should belong to the nation as a whole also. What are the problems of the nation, socio-economic level, every level. And if we will raise issues regarding the whole India, then of course, then Dalits can come close to us, then backward classes will come close to us, then even poor people will come close to us. So this multi-dimensional approach is essential. Unless we adopt this, we cannot hope to succeed. Jazakallah. Jazakallah khair, Dr. Sahab. Jazakallah. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸಮಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೆವು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನವಾಸ್ ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 2 ದಿವಸದ್ದು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ 2 ದಿವಸದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬಯಸಿದ್ದೆವು ಇದರ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಡೆಸುವಾಗ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದರೆ ನಾವು 2 ದಿವಸದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧಾರಾಳ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಯಿಷಾರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಕಾಫಿರ್, ಯುದ್ಧಗಳು, ಕುರ್ಆನ್ನ, ಈಗ 10 ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿಷಾದ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಮೀರ್ ಅಲ್ಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಗಾಮಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ್ರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಹಿಲ್ ಕರೀಮ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಅಸ್ಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. अम्मा बाद, आज के इस दावा वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी हमारे निहायत मुअज़्ज़ज़ दोस्त डॉक्टर जावेद जमील साहब, जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब और पूरे हल्के से
यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद रफ़क़ा कराम, हज़रात व ख़वातीन, दावती काम अमलन करने वाले और दिलचस्पी रखने वाले अहबाब, निहायत मसर्रत और ख़ुशी की बात है कि लॉकडाउन और आने जाने पर, जमा होने पर जो पाबंदियां इस वायरस की नतीजे में रही हैं, इसके बावजूद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अपना काम जारी रख सके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा क़रीब में हमने एक दावती मुहिम भी ऑनलाइन मनाई, उसी तरह दावती वर्कशॉप का भी एक एहतमाम आज निहायत उम्दा तरीके से हो सका है। ये निहायत खुशी की बात है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ, और ख़ास तौर पर हमारे मेहमान डॉक्टर जावेद जमील साहब, जिन्होंने इस मैदान में काफ़ी काम किया है, बहुत सारा लिटरेचर पैदा किया है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, और इस वक्त एनपोया यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ सी के चेयर के आप वहाँ के चेयर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेक्चर भी और आज आपने जो सवालात के मुफस्सल जवाबात दिए हैं वो हम सब के लिए निहायत ही चशमकुशा और हमारे लिए राहें दिखाने वाली कि कैसे इन हालात में दावती काम को हमें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है कि दावत का काम करने का हौसला और जज्बा अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, और अमरन आप लोग इस मैदान में सरगर्म हैं। दाई को जहाँ बहुत सारी दीगर खुसूसियात अपने अंदर पैदा करना है, हम जानते हैं, बेलूसी है, बेगर्जी है, अमानतदारी है, और दिल सोजी है, और लोगों की खैर खाही है। बहुत सारी खुसूसियात हैं जो दावती काम करने वालों में होना चाहिए। वहीं एक अहम बात ये भी है कि आप दावत का काम करें और खुदा के दीन की दावत दें हिकमत के साथ, जैसा कि आगाज में भी एक आयत पढ़ी गई, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, यानी अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत के साथ, दलील के साथ, बुरहान के साथ, रीजनिंग के साथ, इस्तदलाल के साथ अपने मौक़िफ़ को पेश करो। इसी तरह मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी सूरह यूसुफ की, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी, ये एतमाद, ये बसीरत, ये एनलाइटनमेंट, ये कन्विक्शन और ये यकीन आपको होना चाहिए कि यही सीधा रास्ता है जिसकी तरफ यहाँ कहा जा रहा है कि खुद अल्लाह के रसूल और आपके मुत्तबे, हम सब की ये ज़रूरत है कि अला वजहिल बसीरत और पूरे ईखान के साथ, इस्तदलाल के साथ और पूरे ज़ोर बयानी के साथ आप अपनी बात को पेश कर सकें, लोगों को मुतमईन कर सकें। तो ये दाई की एक ज़रूरत है कि वो अपनी बात को मुदल्लल अंदाज से पेश कर सके और लोगों को मुतमईन कर सके। चुनाचे आज के ज़माने में, आज जबकि साइंस तरक्की याफ्ता दौर के कहा जाता है, साइंसी दौर कहा जाता है, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज की मालूमात के पस मंज़र में आप वही बयान, वही दलील जो कुरान पेश कर रहा है, और कुरान का बयान तो एटर्नल है और टाइमलेस है, उन्हीं दलाइल को, उन्हीं नेचुरल फिनोमेना को जिसकी तरफ कुरान तवज्जो दिला रहा है, उसे और पुरजोर अंदाज से आप आज के साइंस और आज की तरक्की याफ्ता दौर में उसको आप पेश कर सकते हैं। चुनांचे हमारी ज़रूरत है कि हम दावती काम करें, मगर दलील और बुरहान की बुनियाद पर, हिकमत की बुनियाद पर और बसीरत की बुनियाद पर लोगों को दावत दे सकें। इस खुसूस में आज का जो किताब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक निहायत कीमती किताब है। दूसरी बात ये भी है कि दाई को मदऊ समाज का भी मताला करना चाहिए, जिनके दरमियान आप काम कर रहे हैं, उनके बाबत भी और उसके सिलसिले में भी कुरान कुछ बातें बयान करता है। एक तो ये कि या कौमी कहकर खिताब किया गया, जिसका मतलब ये कि आप जिन लोगों को बुला रहे हैं वो आपको अपनी कौम का आदमी समझें, आप उनको अच्छी तरह समझें। जिस समाज में आप दावती काम कर रहे हैं उसके अकायद, उसके अखलाक, उसके अक़दार और उसके गलत फहमियाँ और उसके अंदर जो खराबियाँ एतक़ादी और अमली खराबियाँ हैं उसको आप अच्छी तरह समझते हों। कुरान ने अंबिया को पेश किया तो अक़ूहुम कहकर, यानी मैं तो तुम्हारे भाई को रसूल बनाकर भेज रहा हूँ,
यानी रसूल अपने आप को अपने कौम का भाई बनाकर पेश करते थे और दावत देते थे, या कौमें कहकर करते थे। चुनाचे मधु समाज का मुताला भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और इस वक्त समाज में जो मुख्तलिफ बुराइयां हैं, एक तरफ तहरीत और इल्हाद की बुराई है जो यूनिवर्सल है, और आज की गालिब तहजीब मगरबी तहजीब है जैसा कि आप जानते हैं, और उसी का एक ओवरवेलमिंग डोमिनेशन है, चाहे मशरिक हो या मगरिब, चाहे हमारा मुल्क हो या कहीं और। चुनाचे इल्हाद और दहरियत के खिलाफ कुरान का, इस्लाम का जो इस्तदलाल है वो हमें मालूम होना चाहिए। शिरक है, और यहाँ हमारे अपने हिंदू समाज की बहुत सारी बातें आई, अवतार है, पुनर्जन्म है, आवागमन है, इन चीज़ों के सिलसिले में हमारी मालूमात भी अच्छी होनी चाहिए और हमारा एक मुदल्लल अंदाज होना चाहिए। और इसी तरह हमारे समाज में, खुसूसन कर्नाटक में, हम देखते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ मजहबी तबक़ात हैं, लिंगायत हैं, वक्कलिगास हैं, दलित हैं, क्रिश्चियंस हैं और मुख्तलिफ दीगर ज़ैली तबक़ात हैं। इनके सिलसिले में भी ज़रूरी मालूमात हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपनी बात को मुदल्लल तरीके से उनके सामने रख सकें। इसी एहसास के तले हमने आज का प्रोग्राम अरेंज किया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये मुख्तलिफ उन्वानात के तहत समाज को समझने, आज के हालात को समझने और आज के तरक्की याफ्ता दौर को, इसके जहन को समझने, इसकी बीमारी को समझने के लिए इंशाल्लाह डॉक्टर जावेद जमील साहब को अफसोस है कि हम काफ़ी वक्त नहीं दे सके। इंशाल्लाह मज़ीद ज़हमत देंगे डॉक्टर साहब आपको आइंदा भी। और इसी तरह यहाँ हमारे अपने दीगर रिसोर्स पर्सन से भी लिंगायत पर, यहाँ मसलन रमज़ान दरगाह हैं, उनकी मालूमात और उनकी स्टडी बहुत अच्छी है। इसी तरह यहाँ दलित के सिलसिले में हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं जो हमको शायद इस सिलसिले में बेहतर मालूमात दे सकेंगे। तो हमारा एक इरादा है कि इस तरह का एक इस्लाम अध्ययन केंद्र या सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी के नाम से कुछ इस तरह का एक शक्ल बनाई जाए, जिसमें हम कभी नॉन मुस्लिम स्पीकर से, कभी हमारे अपने इंटेलेक्चुअल से और माहिरीन से हम सुनने का मौका पैदा करेंगे। और इस तरह हमारा मुताला भी वसी होगा, हमारे मालूमात भी बेहतर होंगी और मदऊ समाज को, मदऊ फ़र्द को समझकर दावत का एक मुअस्सर तरीक़ा अख्तियार करने की हमें सलाहियत हमारे अंदर पैदा करने का मौका हो सकता है। तौहीद, रिसालत और आखिरत जैसा कि आप जानते हैं इस्लाम की बुनियाद है और इस्लामी नज़रिए की, फ़लसफ़े की, आइडियालॉजी की ये बुनियाद है। और इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न दैट कुरान स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम। कुरान की अक्सर आयात आप देखेंगे, 2/3 कुरान तो मक्की है और मक्की सूरतों का गालिब मज़मून यही तौहीद, रिसालत और आखिरत के दलाइल फराहम करना है। ये कोई बिला वजह की बात नहीं है और हमको इसे बगौर मुताला भी करना चाहिए, इसी स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, कुरानी तर्ज दावत को इख्तियार करना चाहिए और इन्हीं बुनियादों को मुस्तहकम करने के लिए हमें काम करना चाहिए। हम बहुत से दीगर इश्यूज़ को भी एड्रेस करेंगे, मसाइल को भी एड्रेस करेंगे, दीन के मुख्तलिफ अहकामात पर भी अमल करके उनका नमूना पेश कर सकेंगे। बात आई हमारे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की और इकामत दीन के सिलसिले में भी बाज़ रुफ़ा ने सवाल किए। देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हम करेंगे और उनसे भी मिसाल पेश करेंगे, मगर बात दरअसल ये है कि गालिब इल्हादी और मुशरिकाना निज़ाम में दीन के कुछ अज्जा को हम पेश करके न दीन का सही तसव्वुर पेश कर सकते हैं और न सही मानों में वो दीन के गलबे की एक शाहरा हमारे लिए खोलेगा। हमको मौजूदा निज़ाम और मौजूदा आइडियालॉजी की बुनियादों को खोदना है, उनका डिकंस्ट्रक्शन करना है। उनकी बुनियादों को डिकंस्ट्रक्ट करते हुए उसके मुकाबले में इस्लाम एक अल्टरनेट तहज़ीबात, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनी है, सारी इंसानियत को मुखातिब करके कैसा एक अल्टरनेट निज़ाम हम कायम कर सकते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कही जा सकती है उसकी बुनियाद अगर तौहीद, रिसालत और आखिरत नहीं है, वहदत इलाह, वहदत इंसानियत और वहदत निज़ाम जो इस्लाम पेश करता है वो नहीं है, तो कोई दूसरी बुनियाद हो ही नहीं सकती। चुनांचे हमारी आर्ग्यूमेंट का, हमारी पेशकश का, हमारी दावत का एक गालिब हिस्सा हमारी आइडियालॉजी और उसकी बुनियादों को मुस्तहकम करना, ये लगातार करने का काम है, मुस्तकिल करने का काम है। और ये बुनियादें अगर इस्तवार हो गई और इस माने में इंटेलेक्चुअली आप अपनी लड़ाई जीत गए तो फिर इंशाल्लाह आगे के मराहिल आपके लिए खुलेंगे, वरना
एक गालिब तहजीब और उसमें मगलूब रहकर जहनी तौर पर, अमली तौर पर आप कुछ चंद चिराग रोशन करके उजाला तो नहीं कर सकते। उजाला तो उसी वक्त होगा जब इस्लाम की बुनियादों को आप इस्तवार करेंगे और एक हमगीर दावती काम हमें अंजाम देना है। चुनाचे आप देखेंगे कि इस्लाम ने तौहीद, रिसालत और आखिरत के सिलसिले में जो बातें बताई हैं, जो इल्मी और अखली तरीक़ा हमारे सामने रखा है, वो अपनी इम्तियाज़ आप रखता है। दुनिया में या तो महज जहालत से काम लिया गया है और ख्वाहिशात के ताबे होकर इंसान ने इस सिलसिले में सोचा है। साइंस तो बहुत तरक्की कर गई है, मगर ये साइंस का मैदान नहीं है। ये मेटाफिजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सवालात हैं, ज़िंदगी की हकीकत है, इसका जवाब साइंस नहीं दे सकती है। साइंस इसके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसका एक जवाब तो वो है जो आज की मगरबी दुनिया दे रही है, निहायत जाहिलाना जवाब, जिसे कुरान नकल करता है, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबूसिन, मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर। ये इनकी फिलॉसफी है, ये इनका नजरिया है। वो ये कि जो कुछ भी है बस यही दुनिया है, यही मरना जीना है, यही टाइम का साइकिल है, ये जमाने का उलट फेर है जो चल रहा है। ये इनका नजरिया है, बोधा नजरिया है। या फिर आप देखेंगे कि दुनिया का एक हिस्सा वो है जिसमें इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखुरसून, ज़न्न और तखमीन, वहम और गुमान और स्पेक्यूलेशन और ख़यासाराई से काम लिया गया है और मुख्तलिफ अकायद को और दुनिया की हकीकत को समझने के लिए मुख्तलिफ गलत अकायद को बुनियाद बनाया गया है, मुश्तरकाना अकायद को बुनियाद बनाया गया है। इन सब के मुकाबले में इस्लाम जो रास्ता तजवीज़ करता है वो इल्मी और अखली तरीक़ा है, गौर और फ़िक्र की कुरान दावत देता है, तअक्कुल और तफक्कुर की तरफ तवज्जो दिलाता है, उलुल अलबाब उलुन नुहा ज़िल हिज्र कहकर इंसानों को मुखातिब करता है, सोचने और फ़िक्र करने की दावत देता है। और एक रास्ता, एक जवाब जिंदगी के इन बुनियादी मसाइल का वो है जो अंबिया पेश करते हैं। अव्वल रोज से आखिरी नबी तक एक ही जवाब उन्होंने दिया है जो तौहीद, रिसालत और आखिरत पर मुश्तमिल है। उसकी सेहत और उसके सही होने पर दलाइल का एक अंबार है जो कुरान लगाता है और बार बार दावत देता है। मैंने एक आयत मिसाल के तौर पर आपके सामने पढ़ी, सूरह आल इमरान की मशहूर आयत जो आप जानते ही हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, जमीन और आसमान की खलकत में और दिन और रात के उलट फेर में बेशुमार निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो उलुल अलबाब हैं, गौर व फिक्र करने वाले हैं। इन निशानियों पर जब वो गौर व फिक्र करते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ उनकी याफ्त होती है और फिर वो उठते बैठते और लेटते उसे याद करते हैं और कायनात में गौर व फिक्र करते हैं। तो ये कुरान का तर्ज इस्तेलाल है, रीजनिंग है। इस्लाम किसी ब्लाइंड बिलीफ या डॉगमा का तस्वुर नहीं देता है। इस्लाम एक रैशनल और एक लॉजिकल और एक रीजनेबल अकीदा हमारे सामने पेश करता है जो हमारे इन सवालात का जवाब भी देता है और हमारी अमली ज़िंदगी के मसाइल को भी हल करता है। तो यही बात रिसालत और आखिरत के सिलसिले में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बहुत सी बातें मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम की जो उसकी जो सेहत है और सलाबत है और उसका जो मुकाम है उसको उजागर करने की आई हैं। इंशाअल्लाह इस अंदाज से मुताले को हमें जारी रखना चाहिए। ज़्यादा वक्त हो चुका है, मैं मज़ीद बातें इस मौके पर कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। बस इतनी बात कि आज के ज़माने में मुसलमान दुनिया में हों और हमारे अपने इस मुल्क में हों, जिन हालात का शिकार हैं वो हमारे इस दावती जिम्मेदारी की अज़्म अदायगी के नतीजे में पैदा करदा हालात हैं। चुनाचे हमें इन हालात को अगर बदलना है और सही माने में इस्लाम और मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन करना है, बल्कि दुनिया का मुस्तकबिल भी ताबनाक करना है, तो दावती काम में पूरी क़ुव्वत के साथ हमें लगना चाहिए। हर सतह पर यह काम होना चाहिए। हमारी दावत एक कौमी दावत नहीं है और न हमारा रवैया एक जवाबी कौम परस्ती का रवैया होना चाहिए। यहाँ नेशनलिज्म का सुर गाया जा रहा है तो उसके मुकाबले में हम एक जवाबी कौम परस्ती का और रिएक्टिव मेंटालिटी का शिकार हो तो इससे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हमें ज़रा ऊंचा उठकर इस्लाम की दावत और एक मुस्लिह के तौर पर और इस्लाम की नज़रियाती दावत को लोगों के सामने बयान करना है और इस काम को हम सब्र के साथ, हिकमत के साथ और पूरी तुंदही के साथ और वसी पैमाने पर अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात इसी से
बेहतर हो सकते हैं, और इसी में हमारा मुस्तकबिल पोशीदा है। रफ़ा मोहतरम, सीरत के सिलसिले में भी बात आई। इंशाअल्लाह हम एक ऐसा एक अध्ययन केंद्र कायम करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल्स भी बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान का यूट्यूब चैनल शुरू हो चुका है और हमारी कोशिश है कि इंग्लिश और उर्दू में भी यहाँ बेंगलोर से चैनल शुरू किया जाए। और विचार ज्योति के नाम से शोबे दावत भी एक इस तरह का एक स्पिरिचुअल चैनल यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा है, वेबसाइट शुरू होगा तो वो भी पाइपलाइन में है। और इंशाअल्लाह सीरत का जो मौका रहा है, पॉलिसी प्रोग्राम के दीगर अज़ा पर भी हमें अमल करना है, मगर उसी में से वक्त निकाल कर मुकामी तौर पर लोकल सतह पर हम सीरत के उन्वान से आज, जबकि आप देख रहे हैं कि बेंगलोर के फसादात की ट्रिगर भी यही था, चार्ली हेब्डो के कार्टून्स को दोबारा छापने की जसारत की गई और मुसलमानों से छेड़छाड़ की जा रही है। इसका मुस्बित जवाब हमें देना चाहिए और सीरत का सही पैगाम और तारुफ हमें कराना चाहिए। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम तवज्जो देंगे। आप हज़रात यहाँ जमा हुए और दावती काम हम सब की जिम्मेदारी है। आप वसी रवाबित को इख्तियार करें और हमारे लिटरेचर में भी बहुत सी किताबें इस तरह की मौजूद हैं जिनका आप बगौर मुताला करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ सामान मिलेगा। अक़ल का फैसला है, नबूवत मोहम्मदी का अक़ली सबूत है, ज़िंदगी बाद मौत है, सलामती का रास्ता है, इस्लाम और जाहिलियत है, दीन हक़ है। ये छोटी छोटी किताबें हैं मगर इसमें आपको मुदल्लल तरीके से इन बुनियादों पर कैसे आप बात कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। इंशाअल्लाह हमारा मुताला भी मुस्तहकम होना चाहिए। ऐसी नशिस्तें भी हम बार बार मुनक़िद करेंगे और इस काम को, इस जिम्मेदारी को अंजाम देने की हमारी कोशिश होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस काम को कबूल फरमाए, हालात को हमारे लिए साजगार बनाए और कोरोना वबा से हमें छुटकारा नसीब हो और फिर हम दोबारा हस्बे मामूल इस काम को बड़े पैमाने पर लेकर चल सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್ ಅಮೀರ್ ಅಲ್ಕ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೀರ್ ಅಲ್ಕ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿಚಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸಕ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾವೇದ್ ಜಮೀಲ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಎನೋಪಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇವರಿಗೂ ಜಮಾತ್ನ ವತಿಯಿಂದ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾವೇದ್ ಜಮೀಲ್ ಸಾಬ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ನಡೆಸಿದ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವರಿಗೂ, ತಜ್ಕೀರ್ ಬಿಲ್ ಕುರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಜನಾಬ್ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಮಾತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಬಿಲಾಲ್ ಸಾಬ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಬರಿಲ್ ಸಾಬ್, ಹಾಗೂ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಮೀರ್ ಅಲ್ಕ ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಖಿರ್ ದವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಸುಬ್ಹಾನಕಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವಬಿಹಮ್ದಿ. ಅಮೀರ್ ಅಲ್ಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ? ಜಿ ಸುಬ್ಹಾನಕಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ್. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್.